آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری مکۃ المکرمہ کی قریبی زیارات ہیں، جیسے جبل صور سب سے پہلے، اس کے بعد مینا، مزدلفہ، عرفات، مسجد کیف، مسجد نمرہ، مسجد مشعر الحرام۔ اس کے بعد واپسی میں آتے وقت ہمارے زائرین انشاءاللہ تعالی مسجد جعرانہ سے عمرے کا احرام باندھیں گے، جو عوام الناس کے نزدیک وہاں سے عمرے کا احرام باندھنا بڑا عمرہ کہلاتا ہے۔ پہلی زیارت ہماری ہوگی جبل صور۔ جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور اس پہاڑ کا نام صور ہے۔ صور کا معنی عربی میں بیل کو کہتے ہیں، لیکن اس پہاڑ کو بیل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دور سے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیل بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اسے عربی میں جبل صور کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے موقع پر آپ نے 3 راتیں اور 2 دن قیام کیا تھا اس غار کے اندر۔ 3 راتیں اور 2 دن، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں، بعض حضرات تین راتیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ 3 راتیں ہیں، 2 ہی دن ہیں، کیونکہ جب آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے تو یہ رات کا وقت تھا، اور یہ پہاڑ مسجد حرم سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس کی اونچائی 5,500 میٹر ہے، یعنی 5.5 کلومیٹر تقریباً۔ آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہوگا، اوپر سب سے اوپر 2 پتھر نظر آ رہے ہوں گے، دور سے دیکھو نظر آ رہے ہیں جی، بس اسی کے پیچھے ایک بہت بڑا پتھر ہے اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا غار ہے، اسے غار صور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ غار صور۔ عربی میں پہاڑ کو جبل کہتے ہیں اور صور کہتے ہیں بیل کو۔ اس پہاڑی کو بیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ دور سے یہ بیل کی طرح لگتا ہے کہ بیل بیٹھا ہوا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبل صور۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر آپ یہاں پر اپنے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں رہے۔ 3 راتیں 2 دن قیام کیا۔ اس کے بعد جب دشمن آپ کا پیچھا کیے تو اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے جالا بویا اور کبوتری نے، جب وہ دشمن آ کر دیکھا اگر یہ اندر ہوتے تو کبوتری انڈے نہیں دیتی اور یہ مکڑی جالا نہیں بنتی، یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ 3 راتیں 2 دن جو قیام کیا، اس کے دوران جو کھانے پینے کا انتظام ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن کرتے رہے، وہ اس پہاڑ پر چڑھتے رہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ وہ کتنے مرتبہ اس پہاڑ پر چڑھے ہوں گے، اترے ہوں گے آقا کریم کے لیے۔ لیکن ہم زائرین عمرہ زائرین جب آتے ہیں تو دور سے دیکھ کر تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں 10 مرتبہ سوچتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو غار ہے دیکھیے، اس کی زیارت کرے، تفصیل سے میں نے اس کی باتیں آپ کو بس کے اندر بتائی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے میں گزارش کروں گا کہ 2 اشعار چھوٹے بورڈ، حالانکہ ہے بڑے لیکن دور سے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر عربی میں اور انگریزی میں صاف لکھا ہوتا ہے، کسی بورڈ میں لکھا ہوتا ہے مینا اسٹارٹ فرام ہیئر، یعنی مینا یہاں سے اسٹارٹ ہوا،
अराफात स्टार्ट हुआ इस तरह। देखिए यहाँ बोर्ड में लिखा है अराफात स्टार्ट हियर, मतलब अराफात यहाँ से शुरू होता है। मतलब आप देखिए अभी हम बोर्ड के बाहर है, हम अराफात के बाहर है, ये बोर्ड हमने क्रॉस किया तो हम कहाँ आ गए जी, अराफात में आ गए। और यहाँ से जब बोर्ड में क्या देखेगा अराफात एंड हियर, तो हम जैसे बोर्ड क्रॉस करेंगे तो हम अराफात से बाहर चलेंगे। लेकिन ये बोर्ड की इतनी ताकीद के साथ इतने बोर्ड क्यों लगाए हैं? हाजियों का जो सबसे अहम रुकन है, रुकन आज़म जिसे कहते हैं, हज का सबसे अहम रुकन क्या है? अराफात के अंदर अगर जब 5 सेकंड के अंदर क्यों ना हो अराफात में आना, ये हाजी कहलाएगा। कब आना है? 9 ज़िल-हिज्जा को, यानी ईद के दिन से एक दिन पहले 9 ज़िल-हिज्जा को, जिसे अराफात का दिन कहा जाता है। और उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाजे किराम के अलावा पूरी दुनिया भर में मुसलमान रोजा रखते हैं, अराफात का रोजा, याद है ना अपने लोगों को। और उसकी फजीलत में क्या आता है? अराफात का रोजा 1 साल के पिछले और 1 साल के अगले, यानी 1 साल पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। तो ये अराफात के अंदर आ गए हैं। अगर 9 तारीख को हाजी ज़ोहर की नमाज से लेकर मगरिब तक, ये 2 नमाजों के दरमियान, कब से कब तक बोलिए? इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ तहे दिल से, अल्लाह ताला आप सबको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इसी साल हज में आने की तौफीक अता फरमाए। तो 9 तारीख को ज़ोहर से लेकर गुरूब आफ़ताब के दरमियान 5 ही सेकंड क्यों ना हो अराफात में आएगा। अगर अराफात में मगरिब से पहले नहीं पहुंचा, मगरिब गुजार के पहुंचा, तो उसका हज नहीं हुआ। सारे अरकान अदा करेगा लेकिन हज नहीं, हाजी नहीं कहलाएगा। तो उसे अगले साल फिर हज करना पड़ेगा। लेकिन ये बात किस लिए अर्ज कर रहा हूं मैं कि वो हाजी कैसे नहीं बनेगा? एक मस्जिद इंशाअल्लाह ताला, मस्जिद निमरा, मीनारे वाली नजर आ रही, 6 मीनारे वाली मस्जिद दूर से देखिए, इंशाअल्लाह वहां पर वो रुकाएंगे और 2 रकात नफल अदा करेंगे। जिस मस्जिद के अंदर हज का खुतबा दिया जाता है, मस्जिद निमरा। अब हुज्जाजे किराम गलती ये करते हैं हज के दिन 9 अरफात को, वो मस्जिद आधा हिस्सा, तकरीबन आधा हिस्सा अरफात के अंदर आता है और कुछ हिस्सा अरफात में नहीं आता। तवज्जो चाहता हूँ। अब हाजी गलती क्या करते हैं, क्योंकि सारे हाजी वहां बैठे रहते हैं, अब वो गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये भी अरफात होगा, तो वो उस हिस्से में बैठते हैं जो अरफात के हिस्से में नहीं आता। यहाँ तक कि ज़ोहर से लेकर मगरिब तक का वक्त वहीं पर गुजार दिया। अब मगरिब सूरज डूब गया, अब इसके बाद वहां से चल के अराफात में आएंगे तो उनका हज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? उन्होंने वक्त पर अराफात में हाजिरी दी ही नहीं। कब से कब तक? 9 तारीख, 9 अराफात के दिन ज़ोहर से असर के दरमियान 5 ही सेकंड क्यों ना हो अराफात के अंदर आएगा। इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह कि मैदान अराफात में हाजिर आए हैं। सामने आपको जबल रहमत है, उसकी भी ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और बहुत सारी ज़ियारतें हैं, सारी ज़ियारत की इंशाअल्लाह तआला आप वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। सामने आपको एक छोटा सा पहाड़ नजर आ रहा है,
जिसे जबल रहमत कहते हैं। देखिए दूर से जिसमें लोग चढ़ रहे नजर आ रहे हैं जी, जबल रहमत। आप यूं कह ले ये जबल रहमत मैदान अरफात के दामन में आता है। जबल रहमत मैदान अरफात के दामन में आता है। अरबी में अरफा का माना होता है पहचान। अरफा का माना क्या है जी? पहचान। इसको इस मैदान को अरफात क्यों कहते हैं? इसकी दो वजूहात हैं। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नत से उतारे गए थे, ये आपको मालूम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरजमीन हिंद पर इन्हें श्रीलंका में उतारे और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहाँ उतरी? जिद्दा शरीफ में। तो दोनों अलग अलग मुकाम पर उतरे। अब दोनों एक दूसरे को तलाश करते रहे, कई दिनों तक तलाश करते रहे। उसके बाद जब आप दोनों की मुलाकात जब हुई तो इस मैदान अरफात में दोनों ने एक दूसरे को देखा, पहचाना। इसलिए एक पहचानने को क्या कहते हैं? अरफा कहते हैं। आपने एक दूसरे को अरफात के मैदान में पहचाना। और दूसरी वजह इसकी ये है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप खाने काबा के तामीर से फारिग हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील को, जिब्रील जाए मेरे बंदे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप क्या करें? हज कराए। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज कराया। उसके बाद जब आप मैदान अरफात में आए ना, आप मैदान अरफात को देखते ही कहा कि मैं इसे जानता हूँ, यानी इस मैदान को मैं पहचानता हूँ, क्योंकि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यहाँ पर हाजिर आना हुआ। तो आपने देखा कि मैं पहले भी से यहाँ आया तो ये इस मैदान को मैं पहचानता हूँ। इस वजह से इस मैदान का नाम क्या है? बोलिए अरफात। क्या है? बोलिए अरफात। जैसा कि आपको बताया गया कि हज के अरकान में इसका रुकन आजम यानी बड़ा जो रुकन है वो बड़ा हिस्सा है। हाजी के लिए 9 तारीख को 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफात में हाजिर आना है, अगरचे 5 ही सेकंड क्यों ना हो। वक्त तो कौन सा है? ज़ोहर से लेकर मगरिब के दरमियान 5 सेकंड ही क्यों ना हो, मैदान अरफात में आ जाए। उसके लिए आना जरूरी है, वरना वो हाजी नहीं कहलाएगा। अगर नहीं पहुंचा वक्त पर तो अगले साल उस पर दोबारा हज कर इस मस्जिद के 3 नाम हैं, मस्जिद निमरा, मस्जिद इब्राहिम और मस्जिद अरफात। ये पूरे साल में सिर्फ एक दिन खुली रहती है, 10 ज़िलहिज्जा को। और इस मस्जिद के अंदर खुतबा इरशाद होता है, हज का खुतबा दिया जाता है। ये मस्जिद पूरे साल में सिर्फ एक दिन खुली होती है और 2 नमाज इसके अंदर अदा होती है, 10 ज़िलहिज्जा को ज़ोहर और असर। ये मस्जिद मुज़दलिफ़ा में आती है और इसका कुछ हिस्सा मैदान अरफात में आता है। और जो लोग हज करने वाले हैं वो लोग बगौर समात फरमाएं। बाद हाज़रीन गलतियाँ ही करते हैं, 10 ज़िलहिज्जा को इस मस्जिद में क़याम करते हैं, जबकि ये मस्जिद का बहुत सारा हिस्सा मैदान अरफात में नहीं आता है, थोड़ा सा हिस्सा मैदान अरफात में आता है। और हाजी गलती ये करते हैं कि मैदान अरफात वाले हिस्से में छोड़कर गैर अरफात वाले हिस्से में पूरा वक्त गुजारते हैं, जबकि हज का अहम रुकन जिसे रुकन आज़म कहते हैं वो है वक़ूफ़ अरफा, यानी अरफात में क़याम करना। कितना देर कि नमाज ज़ोहर यानी ज़ोहर से लेकर मगरिब के दरमियान अगर चंद लम्हा भी अगर आप अरफात के मैदान में आते हैं तो आप हाजी कहलाएंगे। अगर ज़ोहर और मगरिब के दरमियान 10 ज़िलहिज्जा को अगर आप अरफात में नहीं आए, मस्जिद के उस हिस्से में बैठे रहे, तो आपका हज अदा नहीं होगा, बल्कि अगले साल आप पर हज करना वाजिब हो जाएगा। तो ये जहन में रखें, ठीक है। आइए
ये मशअरुल हराम है। ये देखिए सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए ताकि हम इसी साल आकर इस मस्जिद में नमाज अदा करें। ये देखिए अरबी नाम, ये देखिए सीधे हाथ में देख लीजिए, सब लोग जियारत कर ले, अपनी अमाते की आंखों से देख ले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा सीधे हाथ की तरफ आप देखें, जिसका जिक्र कुरान पाक में है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, है ना, जो बादशाह था जिसने खाना काबा को ढाने के लिए यमन से निकला था, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर अबाबिल चिड़ियों को मुसल्लत किया था, वो कंकरी ऊपर से फेंकती थी, ये कंकरियां गिरती थी। अच्छा उल्टे हाथ की तरफ आपको एक और ज़ियारत नजर आएगी जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लेटाया था। अल्लाह की तरफ से आपको ख्वाब आया था और कहा कि इब्राहिम कुर्बानी करो, आपने ऊंट की कुर्बानी करी। फिर ख्वाब आया कुर्बानी करो, आपने कुर्बानी ऊंट की करी। फिर बता इब्राहिम अपने पसंद की चीज की कुर्बानी करो, तो आप समझ गए कि कुर्बानी किसी और चीज की नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तलब कर रहा है। अल्लाह आपने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए यहाँ पर अपने साहबजादे को ले आते हैं, लेटाते हैं। बेटा कहता है वालिद से, अब्बू जान आप अपनी आंखों पर पट्टी डाल दीजिए, मेरे हाथों को और पैरों को कसकर बांध दीजिए, कोई ऐसा ना हो मुझे तड़पता देखकर आपको तकलीफ हो जाए और अल्लाह का ख्वाब पूरा करने में आप रह जाए। उसके बाद आप छुरी चलाते हैं, छुरी नहीं चलती है, छुरी चलाते हैं, नहीं, छुरी से कहते हैं छुरी तो क्यों नहीं चलती, छुरी कहती है इब्राहिम तेरी बात मानो कि खुदा की बात मानो। तुम कहते हैं चलो, खुदा मना करता है, मैं कैसे चलूं। अच्छा सीधे हाथ की तरफ देखिए, यहाँ पर जो खाली जगह नजर आ रही है ना, खाली जगह जहाँ पार्किंग वगैरह नहीं है, थोड़ा सा आगे रहेगा दिखाता हूँ, खाली जगह जिसे वादी महशर कहते हैं, जहाँ पर वो अबाबिल चिड़िया वाला अजाब आया था, फिर वो ऊपर से पत्थरें फेंके थे बादशाह अबरहा का। इंशाअल्लाह ताला वो तो ज़ियारत कराएंगे आगे इंशाअल्लाह ताला। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को लेटाया और कहा और ज़बह किया। तो एक रिवायत में ये है कि अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील को, जिब्रील जाए आप जन्नत से दुम्बा ले आए। आपने जन्नत में गए, दुम्बा ले आया और हजरत इस्माइल को हटाकर इस्माइल की जगह को दुम्बे को लिटाया। जैसे ही बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह किया, छुरी चलाई, आंख से पट्टी उतारी, तो क्या देखते हैं बेटा सलामत सही सालिम खड़ा है और दुम्बा ज़बह हो चुका है। इसके शुक्राने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 रकात, ज़ोहर का वक्त था, ज़ोहर की नमाज पढ़ी। अल्लाह ताला को उनकी अदा बहुत पसंद आई। ये 4 रकात वाली नमाज उम्मत मुस्लिमा पर ज़ोहर की नमाज फर्ज करार दी गई। सुभान अल्लाह। ये ऊपर जो आपको जो ट्रेन का स्टेशन नजर आ रहा है ना जी, ये वाला स्टेशन, ये मुज़दलिफा, अरफात, मिना से ये ट्रेनें चलती हैं हज के मौके पर। दूर से देखिए उल्टे हाथ की तरफ एक गुंबद नुमा एक मनारा नजर आ रहा है, इसमें छोटा सा गुंबद बना हुआ है, पिलर है जी, और उसके अंदर छोटा सा सुराग है, नजर आ रहा है जी हाजियों को उल्टे हाथ की तरफ जी। ये वो जगह है जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने के लिए लेटा था। यहाँ ऊपर जाना मना इसलिए होता है, यहाँ ऊपर जो ना ये बादशाहों का महल होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जितना ये पूरे जो यहाँ पर इमारतें नजर आ रही ना, ये बड़ी वीआईपी लोगों के लिए हज के मौके पर ये महलात होते हैं उनके वीआईपी, बड़े बड़े जो बादशाह होते हैं ना जी, ये उनके लिए यहाँ पर क़यामगाह किया गया। ये लेफ्ट साइड में जितने आपको महलात नजर आ रहे हैं, ये हज के मौके पर जो बड़े वीआईपी, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर आजम वगैरह आते हैं, तो उनकी क़यामगाह यहाँ होती है। ये वाली उल्टे हाथ की तरफ, और ऊपर जो महल नजर आ रहा है ना जी, ये बादशाह का महल है। यहाँ सऊदी हुकूमत से बादशाहों का ये महल होता है, इस सबब से उसकी ज़ियारत करना ये जायज़ मना होता है। यहाँ ऊपर आप पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते। अच्छा उल्टा आप देखिए राइट से जी, ये जो खाली जगह है यहाँ आपको नजर आएगी, ये थोड़ा पीछे चली गई है, यहाँ पर अबाबिल का वाक़या पेश है, अज़ाब है। अच्छा अब आप सामने देखिए, जहाँ सामने एक सफेद छतरी नुमा और गुंबद, छतरी नुमा और एक ऊपर से छोटा गुंबद नजर आ रहा है, उससे जमरात कहते हैं, शैतान को कंकर मारते हैं। देख ये मीना के खेमे हैं, हुज्जाज किराम 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांधकर इसी खेमे के अंदर क़याम करते हैं और 5 नमाजें अदा करते हैं। ये सब न्यू मीना कहा जाता है। ये पूरे चारों तरफ आप देखिए लाखों लोगों के लिए खेमे बनाए गए हैं, जो लाखों लोग दुनिया भर से आते हैं, ये उनके लिए खेमे हैं। ये अलग अलग खेमे होते हैं, इंडिया वालों के अलग खेमे होते हैं, पाकिस्तान वालों के अलग होते हैं,
इसी तरह अमेरिका आने वाले उनसे अलग होते हैं, चाइना से आने वालों के लिए, दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक से जो आते हैं उनके लिए अलग अलग खेमे होते हैं। ये 4 मीनारे वाली जो उल्टे हाथ की तरफ मस्जिद नजर आ रही है, ये देखिए, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद कैफ। उल्टे हाथ की तरफ देखिए हुज्जाज किराम, मस्जिद कैफ। एक रिवायत के मुताबिक इस मस्जिद के अंदर 70 अंबिया किराम के मज़ारात हैं। पढ़िए, अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका या अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अंबिया अलैहिस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सलातु वस्सलामु या अंबिया अलैहिमुस्सलाम। उल्टे हाथ की तरफ देखिए तो छतरी नुमा नजर है ना, गोल सफेद छतरी नुमा, उसी को जमरात कहते हैं। उसी के अंदर 3 शैतान है, जो छोटा सा गुंबद सफेद और छतरी नजर आ रही जी बड़ी वाली, जी जी, उसी को जमरात कहते हैं। उसी पर जो है शैतान के 3 शैतान है, तो शयातीन को कंकर मारे जाते हैं। ये सीधे हाथ की तरफ आपको सैकड़ों हजारों तो खेमे नजर आ रहे हैं। सीधे हाथ की तरफ ये मीना है, ये क्या है जी? हाँ, ये मीना के खेमे हैं। यहाँ पर हज्जाज किराम 8 ज़िलहिज्जा को क़याम करते हैं, पूरी रात गुजारते हैं और 5 नमाजें पढ़ते हैं। 8 ज़िलहिज्जा की इशा की नमाज, उसके बाद फजर, ज़हर, असर, मगरिब, ये 5 नमाजें पढ़ते हैं। मगरिब पढ़ के मीना से आप अरफात की तरफ जाते हैं। तो ये मस्जिद जुर्राना के अतराफ में कुछ दुकानें हैं, जैसे जूस की दुकानें हैं। ये 5 रियाल का जूस आता है, ये तकरीबन 115 रुपये है। ये देखिए जूस बन रहा है यहाँ पर, ये उम्रा ज़ायरीन है। ये देखो जूस बना रहे नींबू का, जी जी जी, हाँ, ये हमारे भाई हैं, ये देखिए। और कुछ ये बुरके वगैरह रहते हैं, देखिए 50 रियाल के, ठीक है। ये देखो कुछ खजूरें वगैरह दस्तयाब होती है, चॉकलेट है, किशमिश वगैरह यहाँ पर देखे, और ये कुछ दाने हैं, कुछ शौ चूड़ा और कुछ चना वगैरह, ये देखे। बहुत कसीर तादाद में उम्रा ज़ायरीन की आमद है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से। देखिए ये मस्जिद जुर्राना, जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्रे का ihram बांधा था, और यहाँ से उम्रे का ihram बांधना अवामुन नास के नज़दीक ये बड़ा उम्रा कहलाता है। देखो कितनी कसीर तादाद में यहाँ पर ज़ायरीन आए। ये देखो कुछ यहाँ तस्बीहात वगैरह मिलती हैं, ये देखिए।